Good afternoon. I'd like to welcome everybody to the webinar on building your hospitality career in Germany. Before we start off, I'd like to start this webinar off with the lighting of a virtual lamp. So one sec, I'm just sharing my screen. Okay, yes. So I'd like to welcome our chairman, Sardar Navneet Singh Tuli, our secretary, Mrs. Taranpreet Kaur Tuli, our trustee, Mr. Hiren Patel, directors, Professor Kunal Padole, sir, and Dr. Sudhir Sherke, sir, principal Hemant Hazare, sir, and our principal of GNIHM, Mrs. Sakshi Basari, our teaching and non-teaching faculty, as well as our students. I'd also like to welcome the Vice President of Mr. Pawan Damani and our guest speaker for today, Mr. Kshitij Mittal, who is the Business Operations Manager at Genrise Staffing, at Genrise Global Staffing. Welcome, sir. Thank you for organizing, helping us with this webinar and organizing this webinar. I'd like to ask my colleague, Mr. Vishesh Joshi, to now please say a few words about the college, and then we could start. Hi, good afternoon. Welcome all dear students. I'm sure you all are excited to find out what exactly Mr. Mittal has in store for us and what's in store for your future. Aapke bhavishya ki baat hai. Let me quickly, of course, introduce our college to everybody present here. We are a old education institute where we have our engineering and management colleges in Nagpur under GNI institutions, and we ventured into hospitality 3 years back with Guru Nanak Institute of Hotel Management. We are a small team but efficient team. We work at a level where we engage with our students one-on-one. We provide them with opportunities which are out of the box. We of course meet the curriculum, but we try and go beyond, where they could get practical exposure to industry. We are always open to new innovative ideas where our students could be at a beneficial point. For us, our students and their future is at the very core in behind everything we do. I think this is just one more step towards that direction, and I hope both our organizations work well, where our students land up to be the biggest beneficiaries. So thank you, Susan ma'am. I think we will continue with the main function that we are for. Also, just a little reminder, if we love to talk, as you must have seen, Mr. Mittal, and I'm sure so is true with you. So if we kind of exceed the 40-minute gap, we will rejoin the same link. So so we could keep it as seamless as possible. So thank you, Ms. Faz. It's up to you. Over to you. Thank you. Thank you, Vishesh, sir. Now I'd like to ask Mr. Mittal to please take over and brief our students about the topic. Thank you, Susan ma'am, and thank you, Mr. Vishesh, as well. I'll just request if you can make me the host so that I can share my screen as well. Yes, sir. One second. I'll just do this. I think it's done, sir. So I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. So
Okay, so before I start, I'll give a brief about my company, what we are doing, and how we are promoting the global programs. And first of all, I'd like to thank the chairman, sir, for giving us the opportunity to present to your final year students for this wonderful opportunity which Germany has stored for Indian candidates. And thanks all the faculty members who have joined today. And so my name is Kshitij Mittal. I represent Genrise Global Staffing. So I take care of the entire operations of the Genrise Global Staffing. And we are an impaneled sending organization with National Skill Development Corporation for the Technical Intern Training Program of Japan. And we are also registered recruiting agent with Ministry of External Affairs. And the main objective of Genrise Global Staffing is to skill Indian youth and make them eligible to pursue their career opportunities both in India as well as abroad. But our primary focus is to train and skill the Indian candidates so that they can pursue opportunities abroad. So we have a wonderful opportunity for the hospitality candidates to do internship, or you may say dual degree course or a vocational course in Germany where they can start earning straight away. And the advantage of this course is this comes with 100% job placement in the German hotels. Okay. So I'll go slide by slide, and I'll try to complete the presentation within the stipulated time of 40 minutes, and then we can rejoin for the question answer. And in case if anybody has a question in between, they can surely ask. No issues in that. So good afternoon, students. So let me start the presentation now. Learn and earn in Germany. So these programs, although it's a learning program for all of you, but at the same time, you are going to earn a stipend as well. जो स्टाइपेंड मैं बोलता हूँ, स्टाइपेंड 780 यूरो मिनिमम से स्टार्ट होता है एवरी मंथ. एंड इफ यू कंपेयर इट विद इंडियन स्टैंडर्ड्स, like I'm not very sure how much salary you will get when you start your career in India, but still it's on an average it's threefold more than what the initial salary you will get in India. अगर जो मेरा सर्वे कहता है कि जनरली हॉस्पिटैलिटी में कैंडिडेट्स 20 to 25,000 की स्टार्टिंग जॉब करते हैं इंडिया में वंस दे ग्रेजुएट फ्रॉम द कोर्स. अब इस कोर्स के थ्रू जो जर्मनी में आप करेंगे, आप सीखेंगे भी जर्मन होटल्स में कैसे काम होता है, और उसी समय आपको साथ के साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि मिनिमम 780 यूरो है फर्स्ट ईयर में. ठीक है. अब 780 यूरो को अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में, इट बिकम्स अराउंड 66,300. एंड बिलीव मी, दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर लिविंग इन जर्मनी. आप इससे ज्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स, वो मैं बताऊंगा डिटेल्स में, बट आप मिनिमम अश्योर रखिए कि आपको 780 यूरो तो मिलेगा ही, जिससे आपका रहने का, खाने का और आपके जो नॉर्मल पॉकेट एक्सपेंसेस है वो आप उसको मैनेज कर पाएंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स और योर फैमिली. ठीक है. दूसरा इसमें इस कोर्स का फायदा ये है कि वहां पे जो भी ट्यूशन फीस होती है वो आपका जो होटल जिसके साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं वो आपको हेल्प करता है. आपको ट्यूशन फीस आपको नहीं देनी. फीस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बट जो ट्यूशन फीस की जब हम बात करते हैं तो ट्यूशन फीस इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ द 4-star और 5-star होटल फैसिलिटी. ठीक है. तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, इट कम्स विद 100% जॉब प्लेसमेंट. अगर आप सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो 3 साल का कोर्स है जर्मनी में, आपकी प्लेसमेंट अश्योर्ड है. जो सा होटल आपको इंटर्नशिप कराएगा वो आपको 100% प्लेसमेंट देगा with a starting salary of 2,000 euro. अगर 2,000 euro को मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो इट कम्स अराउंड 1.7 लाख रुपीस पर मंथ. ठीक है. मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर जर्मनी चले जाते हैं तो आपका कोर्स तीसरे साल में या चौथे साल में आपकी जो सैलरी होगी 1,70,000 रुपए होगी. और आप इसको कंपेयर करें इंडियन होटल्स में, अगर आप आज 20,000 में स्टार्ट करते हैं तो 3 साल के बाद आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप किस सैलरी लेवल पे होंगे.
अगर हम 10% का भी इंक्रीमेंट लेके चले तो आप 25 या 26,000 से ऊपर नहीं होंगे। इधर 3 साल के बाद आप 1,70,000 रुपीज पर मंथ मिनिमम कमाएंगे। ठीक है। चौथा एडवांटेज, यू विल हैव अ एडिशनल डिग्री अंडर योर सीवी। इंडिया से आपने हॉस्पिटलिटी कोर्स किया ही है, GNHM से आपने पूरा हॉस्पिटलिटी पढ़ा ही है, आपके साथ साथ इसमें एक जर्मन डिग्री भी आपके सीवी में अटैच हो जाएगी। अब ये समझ रहे हैं कि आप कमा भी रहे हैं और साथ ही साथ एक नई डिग्री भी मिल जाएगी, तो विच मेक्स यू, ये डिग्री मिलती है विच इज वैलिड अक्रॉस द यूरोप एंड यू कैन मतलब अक्रॉस द ग्लोब। आप यूरोप में इस कोर्स के बाद आप यूरोप में कहीं पे भी काम कर सकेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप लोग जर्मनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू यू कैन गेट द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ जर्मनी। परमानेंट रेजिडेंसी मेरे ख्याल से आप लोग सब समझते होंगे। आप 3 साल कोर्स करेंगे, 2 साल की वहां पर जॉब करेंगे, 5 साल आप कर सकते करेंगे, आप ऑटोमेटिकली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वंस यू आर परमानेंट रेजिडेंट देन यू कैन मूव अक्रॉस ऑल द शेंगन कंट्रीज, जो भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, विदाउट एनी वीजा। मतलब किसी को अगर स्विट्जरलैंड में जाके वर्क करना है किसी होटल में, आप कर पाएंगे विदाउट एनी वीजा। आपको सिर्फ अपना ऑफर लेटर चाहिए, आप किसी भी होटल में जाएं और वहां पर आप वर्क कर सकते हैं इजीली। इस कोर्स की जो कमेंसमेंट है वो साल में 2 बार होती है, एक मार्च इनटेक होता है, एक सितंबर इनटेक होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जितने भी फॉरेन कोर्सेज होते हैं दो इनटेक्स होते हैं। तो आप अभी जो हम आज बात कर रहे हैं, ये हम मार्च 23 इनटेक की बात कर रहे हैं। मतलब मार्च 23 में आप जर्मनी में ये कोर्स स्टार्ट कर पाएंगे, या दूसरे वर्ड्स में आप 66,000 की सैलरी से अपना करियर स्टार्ट कर पाएंगे मार्च 23 से। ठीक है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाके कोर्सेज करते हैं। जर्मनी में जाके ये कोर्स करने का क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज कि जर्मनी इज अ एजिंग सोसाइटी। वहां की औसत आय जो है वो 45 साल से ऊपर है। दैट मीन्स यंग पीपल वहां पर बहुत कम है, और इसी कारण बहुत सारी वेकेंट पोजीशंस है। और जर्मन होटल्स को आज की डेट में राइट स्किल नहीं मिल पा रहे हैं जर्मन कंट्री से, तो इसलिए ये कोर्सेज उन्होंने ओवरसीज कंट्रीज के लिए भी ओपन कर दिए हैं। और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसे सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा लेबर शॉर्टेजेस में या स्किल्ड शॉर्टेजेस में है आज की डेट में। एंड करंटली अराउंड 40,000 एम्प्लॉय सच एज शेफ एंड द ट्रेन सर्वर, but they are in Germany, so they people are working overtime, इस तरीके से मैनेज हो रहा है। बट बहुत, अगर कोई भी हॉस्पिटलिटी कैंडिडेट वहां पर जाके वर्क करना चाहता है, उसके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। सो अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो प्रैक्टिकली इट मेक्स कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट भी है वो भी 100% अश्योर्ड है। एंड एक बार आप वहां पर 2 साल की जॉब कर लेते हैं अपने होटल के साथ 3 साल के कोर्स के बाद, देन यू आर फ्री टू मूव वेयर एवर यू वांट, जहां पे अपना सैलरी भी आप बढ़वा सकते हैं, अच्छे ऑफर ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड मूव कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड सबको पता ही होगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो वहां पे बहुत सारे 5 स्टार फैसिलिटीज हैं। एंड अगर एक चीज और, ये जितनी भी ट्रेनिंग होगी इट इज गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय 4 और 5 स्टार फैसिलिटीज ऑफ जर्मनी। कोई भी छोटे होटल्स नहीं करते हैं, तो आप यू विल बी ट्रेन विद 5 स्टार होटल्स ऑफ जर्मनी। मैं उनके नाम भी बताऊंगा, आप उनको रिसर्च मतलब गूगल पे सर्च भी कर पाएंगे। तो अब जब हॉस्पिटैलिटी की हम बात कर रहे हैं तो दीज टर्म्स आर आपके फेमिलियर ही होंगी, बट यू कैन चूज फ्रॉम होटल स्पेशलिस्ट, you can choose restaurant specialist, you can be a chef, or you can choose system gastronomy. System gastronomy is something which we have very limited demand, but yes, whenever the opportunity will come, we'll share that opportunity. But right now you can choose from hotel, restaurant and chef. अब होटल स्पेशलिस्ट में क्या क्या रूल्स हैं? होटल स्पेशलिस्ट में you can become a front desk executive, you can become a sales executive, you can become a hotel inventory control manager, you can become a store manager, you can become a housekeeping supervisor. These are all roles which comes in hotel specialist. Restaurant specialist, managing a restaurant mostly in the 5-star hotels or a standalone restaurant as well. Chef
आपको पता ही है, बट हियर जब शेफ की आप ट्रेनिंग करेंगे तो यू विल बी ट्रेन्ड इन जर्मन कुजीन्स। क्या पढ़ेंगे, ये स्पेशलाइजेशन वाइज हमने जो बेसिक कोर्स आप जो स्टडी करेंगे जर्मन एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सारे हैं। फर्स्ट ईयर में इज कॉमन फॉर एवरीवन, सो किचन सर्विस एंड स्टोरेज मैनेजमेंट विल बी टॉट इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में इट बिकम्स मोर स्पेसिफिक, तो जब होटल स्पेशलिस्ट और रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट है उनका कोर्स सेम रहेगा, दे विल स्टडी मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड परचेज मैनेजमेंट, ठीक है। और जो शेफ है वो वेजिटेरियन फूड, स्नैक्स, कोल्ड एंड वार्म बफे, आ ला कार्टे शॉप, उसके उनके लिए ट्रेनिंग होगी। एंड थर्ड ईयर इज स्पेशलाइज इन देयर ओन डिपार्टमेंट, सो होटल स्पेशलिस्ट विल डू द ट्रेनिंग इन फ्रंट डेस्क, सेल्स ऑपरेशंस, marketing of hotels, these activities will come in hotel specialist. Restaurant specialist में मैनेज रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करना है, सेल्स ऑफ फूड एंड बेवरेजेस है, मैनेजमेंट ऑफ टेबल है, these are all you are going to study in the third year. अब मैं जब स्टडी बात कर रहा हूँ, इट्स इंटर्नशिप। आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उसको 3 times you have to do the practical training. ये कोर्स पूरा जो डिफाइन किया है इसमें आप 25 to 30% आप क्लासरूम स्टडी करेंगे और 30 to 70%, 25 to 100% बाकी जो बैलेंस है यू आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो भी आप सीखेंगे उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट वंस यू आर कंप्लीटेड द कोर्स यू आर इमीडिएट एम्प्लॉयबल कैंडिडेट फॉर द होटल। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो ट्रेनिंग सेंटर जहां पे आप ट्रेनिंग करेंगे, एंड जहां ट्रेनिंग करेंगे वहां पे मिक्स ऑफ नेशनलिटीज होंगे, देयर विल बी अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, देयर विल बी जर्मन सिटीजंस हु विल बी डूइंग द ट्रेनिंग अलोंग विद यू। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। दीज आर द होटल्स व्हिच आर गोइंग टू बी योर ट्रेनिंग पार्टनर्स इन जर्मनी ड्यूरिंग द एंटायर 3 year कोर्स। आप इनका वेब एड्रेस भी दिया हुआ है तो यू कैन चेक ऑन द गूगल्स, एंड दिस विल बी योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पार्टनर्स इन जर्मनी। ये सारे कैमनिट्स एक सिटी है जर्मनी में, वहां पे बेस्ड आउट है। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कैसे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी, एज की जो लिमिट है वो 28 years है। क्वालिफिकेशन, आपके पास 10+2 मिनिमम होना चाहिए, प्लस आपका हॉस्पिटैलिटी का डोमेन सर्टिफिकेशन, विच आई होप वंस यू पास आउट यू विल हैव दिस हॉस्पिटैलिटी डोमेन सर्टिफिकेट। These are the basic eligibility requirement. And second, to get admitted you have to learn the German language. That is the most important aspect of the entire program. जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको मैं जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग के बारे में बताऊं तो इसमें टोटल 6 लेवल्स होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 जो है वो बेसिक लेवल्स कहलाते हैं, B1 B2 आर द इंटरमीडिएट लेवल्स, C1 C2 आर द एक्सपर्ट लेवल्स। आपको एडमिशन लेने के लिए, वीजा लगने के लिए B1 पास करना है, मतलब नीचे से तीसरा लेवल यानी कि लोअर इंटरमीडिएट, विच इज अ वेरी बेसिक। इसके लिए आपको सिर्फ 260 घंटे की ट्रेनिंग करनी है लैंग्वेज की। A1 के लिए 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है, A2 के लिए 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और B1 के लिए 120 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो टोटल 260 आवर्स की ट्रेनिंग बन जाती है, जो कि ओवर 6 months में कंप्लीट होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलेस अंटिल यू पास द B1 लेवल यू विल नॉट गेट द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्यों जर्मन लैंग्वेज क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वंस यू वर्क इन द होटल देन द लोकल लैंग्वेज इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहीं पे भी चले जाएं तो अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो यू आर मोर कंफर्टेबल, एंड व्हाइल डीलिंग विद योर क्लाइंट्स यू हैव टू डील विद दोस। तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो B1 लेवल में आप नॉर्मली कम्युनिकेट कर पाएंगे, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट, ठीक है। आप जब इंग्लिश की बात करते हैं तो आईएलटीएस में बहुत ज्यादा हाई स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, 8777 का बैंड चाहिए या मिनिमम 6 ऑन एन एवरेज 6.5 का चाहिए। बट नहीं, जर्मन लैंग्वेज में इधर यू पास इन द एग्जाम और यू फेल इन द एग्जाम, देयर इज नो बैंड काइंड ऑफ थिंग। तो आपके पास रूम रहता है
और तीसरा एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी एग्जाम आपको रिपीट भी करना है तो आपको सारे मॉड्यूल्स रिपीट नहीं करने होते, एक ही मॉड्यूल रिपीट करके आपको पूरा सर्टिफिकेट मिल जाता है। एंड कैंडिडेट्स कैन डू B1 लेवल तक करना आप लोगों के लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा, जस्ट यू हैव टू पुट लिटिल एफर्ट इन लर्निंग द लैंग्वेज। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द गेटिंग एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम। अब प्रोसेस कैसे रहेगा, आप कैसे जा पाएंगे, जैसे मैंने बताया मार्च 23 का इनटेक है, मतलब आप जर्मनी में ये कोर्स आप मार्च 23 में स्टार्ट कर पाएंगे। उसके जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको लैंग्वेज सीखनी है, वीजा लगवाना है, तो वो जनरली एक साल लग जाता है इसमें इंटायर पूरे प्रोसेस में। तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो विल आस्क यू टू मेक योर CV एज पर द जर्मन फॉर्मेट, ठीक है, और उसमें एक आपका मोटिवेशन ऐसे आएगा कि व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स इन जर्मनी, वो एक हम बनाएंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबल मतलब विल डू द इनिशियल स्क्रीनिंग। जब जो से कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, जो स्क्रीन कैंडिडेट्स होंगे, विल प्रिपेयर देम फॉर द इंटरव्यूज विद द जर्मन पार्टनर, then the German agency is going to interview them and then they will issue the offer letters to all the candidates. ये जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले का प्रोसेस है। आपके पास इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो एडमिशन लेटर है इस कोर्स में वो आ जाएगा, उसके बाद ही आपको जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग करेंगे। जो डेफिनेटली जब आपका ऑफर लेटर आएगा उसमें कुछ कंडीशन होंगी लाइक B1 लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड ऑल, वो आपको ऑफर लेटर में मेंशन होंगी, एंड देन यू विल स्टार्ट योर जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग। और जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग हम ही कराएंगे, विल मेक श्योर दैट एवरीबॉडी हु एनरोल्स अ कैंडिडेट डू द ट्रेनिंग प्रॉपर्ली, एंड बीच बीच में मॉक टेस्ट लेंगे और तभी बोलेंगे एग्जाम लेने के लिए जब हमें लगेगा कि एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग तभी करनी है जब आपके पास पता है कि आपका एडमिशन हो चुका है, राइट। देन B1 लेवल का एग्जाम होगा, एग्जाम पास करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन वीजा प्रोसेसिंग हुई जिसमें 3 महीने लगते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू फ्लाई टू जर्मनी। तो मोस्ट लाइकली अगर आप इस कैंडिडेट में एनरोल करते हैं तो आपको फरवरी एंड तक फ्लाई करना होगा। अब सॉरी बट थोड़ा सा डिले हुआ है, वी हैव अ डेडलाइन। आपके जो ऑफर लेटर्स है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड होता है तो ऑफर लेटर्स हैज टू कम बिफोर 15th मार्च, अदरवाइज आप ट्रेनिंग पूरे टाइम में नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी अ डिले। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो ये मान के चलें कि आपको इंटरव्यूज बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एंड जो ऑफर लेटर्स विल कम बाय मिड ऑफ मार्च, एंड वी हैव टू स्टार्ट द ट्रेनिंग बाय मिड ऑफ मार्च। अब ये स्लाइड मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्ट की होगी कि जो इनको पैसा मिलेगा वो कैसे मिलता है, क्या इसका तरीका है। मैंने इसमें जो स्टाइपेंड बताया था स्टार्टिंग 780 यूरो मिनिमम बताया था, एंड बाय डिफॉल्ट एवरी ईयर स्टाइपेंड इंक्रीजेस बाय 100 यूरो। 100 यूरो मींस 8500 रुपीस या 8500 रुपए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में आपका 880 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 1000 यूरो हो जाएगा स्टाइपेंड, ओके। इसको आप कैलकुलेट करेंगे इंडियन रुपीस में, आज की डेट में 85 का एक्सचेंज रेट लिया हुआ है, तो करीब 74,800 आपका इन हैंड मतलब CTC हो गए इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड। कुछ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं जर्मनी में, वो आपकी स्टाइपेंड से डिडक्ट होगा। इसमें हाफ आपका होटल पे करेगा और हाफ आपको पे करना होता है, which is going to be approximate 176 euro. That means after that deduction, the net wages in hand is going to be 704 euro or 60,000 rupees monthly. ठीक है। अब इस 60,000 में आपको वहां पे खर्चा निकालना है, तो इसमें सब्सिडाइज है। आपका जो अकोमोडेशन है वो पहले से ही प्री अरेंज होगी, और उसका रेंट जो कैप किया हुआ है 150 यूरो पर मंथ किया। आपको जो अकोमोडेशन मिलेगी, शेयरिंग अकोमोडेशन मिलेगी, फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगी। बेसिकली 3 BHK फ्लैट में 6 पीपल विल स्टे, एंड जो आपका रेंट है उसको 150 यूरो पे कैप किया जाएगा। यूटिलिटी एक्सपेंसेस मतलब वहां की हीटिंग, गैस, बिजली, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अराउंड 50 यूरो, ठीक है। थर्ड इज द फूडिंग एक्सपेंसेस विच इज जनरली 150 यूरो। सो अगर टोटल में लिविंग एक्सपेंस की बात करूं तो 350 यूरो में आप अपना खर्चा निकाल पाएंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स। That means you'll be able to save at least 350 euro
per month, or 350 euro is almost 25,000 rupees, which is your starting salary in India, even less than that. ठीक है. अब इसके अलावा क्या एडवांटेज है अगर आप जर्मनी जा रहे हो? ये कोर्स जो होगा 5 days वीक होगा और 8 hours इन अ वीक. दैट मींस यू विल हैव एम्पल टाइम. अब उस सैटरडे संडेज हैं या पीक सीजन है, यू विल ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ओवर टाइम और पार्ट टाइम. ठीक है. ओवर टाइम पार्ट टाइम में आप मिनिमम 10 euro पर आवर भी लेके चले तो और हफ्ते में आप 20 hours लीगली ओवर टाइम कर सकते हो, तो 200 euro एवरी वीक यू कैन अर्न एडिशनली. दैट मींस पूरे मंथ में आप लगा के चले तो 800 euro और जो जितना स्टाइपेंड मिला है उतना ही आप ओवर टाइम में अर्न कर सकते हो पीक सीजन में. बट मैंने ऑन एवरेज 400 euro लेके चला है. दैट मींस अराउंड 34,000 यू कैन सेव एडिशनली, यू कैन अर्न एडिशनली व्हाइल डूइंग दिस इंटर्नशिप कोर्स इन जर्मनी. इसमें एक EMI पे आउट लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है मेरी फ्यूचर स्लाइड्स में. These are the pictures of the lodging जो आपको मिलेगी. इस टाइप की आपको अकोमोडेशन मिलेगी जब आप ये कोर्स करेंगे. जब दिस इज अ सैलरी पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स. तो मैंने बताया कि जो आपके ऑफर लेटर्स आएंगे जो इनिशियल फर्स्ट स्टेप में होंगे उसमें मेंशन होगा कि यू आर गोइंग टू बी प्लेस्ड वंस यू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली इन जर्मनी, एंड उसमें क्या सैलरी होगी वो भी लिखा होगा. तो मैं जो मिनिमम सैलरी लेके चल रहा हूँ दैट इज 2,000 euro, विच इज 1,70,000, विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल. उसमें डिडक्शंस होती हैं, पेंशन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज केयर इंश्योरेंस, ये सारे डिडक्ट होते हैं आपकी सैलरी से. इनके सबके बेनिफिट्स हैं. डिडक्ट तो होते हैं बट इनके बेनिफिट्स भी हैं. बेनिफिट्स क्या है? जर्मनी में अगर कोई रिटायर होता है एट द एज ऑफ 65 years, उनको अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन देती है एवरी मंथ, विच इज मोर देन इनफ टू कवर अप देयर लिविंग एक्सपेंसेस प्लस द एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. जनरली इट्स अराउंड 67% ऑफ देयर लॉस्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी. आप समझ सकते हैं, अगर सपोज आप 5,000 euro में है, उसमें 3,000 बेसिक है आपका, तो उसका 67% आपको ऐसा पेंशन मिलता रहेगा टिल द टाइम यू आर अलाइव इन जर्मनी. हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो अगेन यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड थ्रू इंश्योरेंस. अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, इन केस कोई होटल बंद हो गया या आपकी जॉब चलेगी, गवर्नमेंट आपको उस पीरियड के बीच में जब तक आप नई जॉब नहीं ले पाते हो, उस पीरियड में जो जितना भी टाइम जर्मनी में रहोगे, गवर्नमेंट आपको एक अमाउंट देगी जिससे आप अपना खर्चा निकाल पाएंगे. ओल्ड एज केयर इंश्योरेंस क्या होता है? ये इंश्योरेंस जितने भी बूढ़े लोग हैं जर्मनी के, वो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज देती है, प्रोवाइड करती है. उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन होती है वो सारे सिटीजन्स देते हैं जो वर्किंग होते हैं. वो एक छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूशन आप उनकी जर्मन ओल्ड सिटीजन्स के लिए पे करते हैं. बट स्टिल after all deduction you are going to get a salary of 1,20,000 rupees per month, and again this is based on 5 days working, 8 hours working. इसके अलावा जो भी काम करोगे that is going to be counted over time. ठीक है, ये starting salary है, and then with your experience, with your skills, you can reach up to 5,000, 6,000 euro. It depends upon you working. अभी तक कोई भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. उसके बाद क्या आपका एक्सपेंस आएगा इस प्रोग्राम को करने के लिए, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी क्वेश्चन है किसी इस चीज के बारे में, आप पूछ सकते हैं. Sir, you can hear us? I think Yes, the yes, I can hear connection you, broke ma'am. in the middle. I can hear you, ma'am. Okay, yes. Students, if you all have any questions, please go ahead and ask, okay? Also, sir, we have 5 minutes for this meeting, then we can rejoin on the same link.
Sure, ma'am. Sure. So, in case you don't have question right now, so I'll move to the investment part. What is going to be your investment for pursuing this course? So, इसमें yes, definitely कुछ खर्चा आएगा आप लोगों का. जो खर्चा आएगा वो सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है. जर्मनी में जाके आपको मैंने बताया कि कोई भी ट्यूशन फीस आपको नहीं पे करनी है. आपका स्टार्टिंग में एक एनरोलमेंट फीस लगेगा. जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है will ask them, will prepare their CV and will ask them to sit in the interview. So we'll take a small token registration amount of every interested candidate, which is a refundable amount. Again, I'm repeating, which is a refundable amount in case कोई भी candidate अगर select नहीं होता है जर्मनी में इंटरव्यू के दौरान, we are going to refund the entire amount. And जो लोग select हो जाएंगे, then they will go for the language training. Language training or administrative expenses are going to be around 75,520 rupees. आपको ये पे करना होगा जब आपका ऑफर लेटर्स आपके हाथ में आ जाएंगे, जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेंगे. और इसमें आपकी इंटायर लैंग्वेज ट्रेनिंग की कॉस्ट इसमें है. इसके बाद आप एग्जाम में बैठेंगे. एग्जाम की कॉस्ट वेरी करती है लोकेशन वाइज. आपका देखना पड़ेगा नागपुर के नियर बाय कौन सा सेंटर है गोयथेगा, वहां पर आपको एग्जाम देना है. एंड जब एग्जाम पास कर लेंगे B1 लेवल, then आपके वन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग, योर वीजा, एयर टिकट, द एडमिशन चार्जेस इन द जर्मनी, ये सब मिला के जो खर्चा आएगा वो 4,57,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेट आएगा. ठीक है. और टोटल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी अराउंड 5,50,000. नाउ फॉर द स्टेज 4, आप लोगों के ऊपर कोई फाइनेंशियली बर्डन ना हो, इसलिए हमने इसकी लोन फैसिलिटी भी अवेल कर रखी है. यू कैन अवेल द लोन फैसिलिटी एंड ये आप अपनी EMI से पे कर पाएंगे. अपनी EMI में पे कर पाएंगे वंस यू स्टार्ट अर्निंग इन जर्मनी. मतलब जब स्टाइपेंड आपको मिल रहा है तो 15, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, EMI पे आउट 15,000 और 4 लाख 4.5 लाख का आप लोन लेते हैं तो 15,300 रुपए की EMI बनेगी 36 महीने की. वो आप अपनी स्टाइपेंड से पे कर सकेंगे. तो आपको फाइनेंशियली बर्डन होने की जरूरत नहीं है. तो आपका जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है जो आपके पॉकेट से जाएगा वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के जाएगा. बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी funded to you through loan so that you can pay from your earnings in Germany. So this takes me to the end of the presentation. And now we can have the detailed question answer session. And then shall we join again? It's only 2 minutes remaining. Yes, sir. There's only 2 minutes. We can join again. We can rejoin the same day. Then. Students, ये link वापस click करके join कीजिए, and then you can ask your question. ठीक है?